हेलो बच्चों। सो दिस क्लास इज अबाउट ICSE क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फोर्स. So first of all, let us understand the difference between a rigid body and non-rigid body. So first one is, in rigid body, when we will apply a force, any small amount of force, so what will happen after application of force? No deformation will occur in body. That means no change in shape and size, and also applied force can be utilized in motion completely. बहुत सिंपल सी बात है. कैसे? अगर हमने ये पर्टिकुलर बॉडी है, इस पर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद अगर ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई तो क्या होगी? डिस्प्लेस हो जाएगी. वेरी सिंपल. एंड इन नॉन रिजिड बॉडीज व्हाट विल हैपन? आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स body will deform or change in shape and size. Another thing, the applied force can be utilized in deformation and some motion also. So this was the basic difference between rigid and non-rigid bodies. Now next one, let us understand what will happen when we apply a force on rigid body. It can perform two kinds of motion. First one is linear motion, or we are calling it translational motion, and second one is basically it is called rotational motion. We are calling it rotational motion. So let us understand one by one. So in this case, suppose this is a body, and if we are applying a force here, and this body will follow the straight line path and will reach here up to this point. So in a linear motion, body after application of force, the body will follow the straight line path. And I am taking another example. Suppose this is an object I have pivoted here at point O, and if we apply the force at this point, what will happen? This object or this rod will rotate like this, or this will follow the circular path. So that means what? When we apply a force on a pivoted body at suitable point. What does it mean, suitable point? मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको ये क्या होता है. सुटेबल पॉइंट का मतलब क्या होता है? अभी सपोज आप यहाँ पे फोर्स लगा दिए जहां पे ये पाइवटेड है, तो क्या ये रॉड मोशन करेगा सर्कुलर? कभी नहीं करेगा. सो यू नीड टू अप्लाई द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर से आप जितनी दूर पे फोर्स अप्लाई करेंगे आपको उतना बढ़िया रोटेशन मिलेगा. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सुटेबल पॉइंट. और ऑल्सो वी कैन से कि सपोज वी हैव अ object like this, a circular object we have. Suppose this one is a circular object, and if we apply a force, tangential force somewhere on this point, a tangential force means along tangent. So if it is pivoted at this point, what will happen? This object will start rotating like this, and other
if you are applying force in this direction, object will rotate like this. So this is very simple to understand. And suppose we are applying a force at the center, what will happen? This wheel now will not rotate. Why? We will understand later. So let us understand the other points. So if body is rotating, suppose this is a circle and we are applying a force, tangential force here, away from the center point O. So if body is rotating, if body is rotating through the pivoted point or around the pivoted point, we will call it rotation. We will call it simple rotation, or this is also called the turning effect. What we are calling it? हम लोग इसे टर्निंग इफेक्ट बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कहने का मतलब क्या है? यह ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये यहाँ पे पायोटेड होगा, तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, तो यही इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। So now next topic is what? Understand the moment of force. Third point is what? Moment of force, जिसे हम लोग टॉर्क भी बोलते हैं, या इसका एक दूसरा नाम होता है, हम लोग इसी को टर्निंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अभी बेहतर समझ में आएगा आपको कि टर्निंग इफेक्ट क्या है। टर्निंग इफेक्ट भी हम से बोलते हैं। इसके लिए एक छोटा सा हम वापस से डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये हमने पॉइंटेड पॉइंट है, हमने इस पर फोर्स लगा दिया है F। ये बीच में आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री का फोर्स बन रहा है, सॉरी एंगल बन रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। When a force F is applied on a body, धीरे धीरे समझ लेते हैं। Applied on a body, suppose this body is what? A. Applied on a body A, which is away from the pivoted center. That means A is a point, not a body, I will say a point which is away from the pivoted center या pivoted point. So this object will start rotating like this. The object will start rotating like this. They are rotating like around the point S. So object will start rotating around point O. So this is called turning effect. What we will call it? This is called turning effect. नहीं समझ में आया तो वापस से सुन लीजिए। हमने कहा कि ये एक पॉइंटेड पॉइंट है, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। एक पॉइंट ए है जो पॉइंटेड पॉइंट से सपोज r डिस्टेंस की दूरी पर है। हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया, जो फोर्स कैसा है नेचर में? टेंजेंशियल है, या आप इसे रेडियल फोर्स भी बोलते हैं।
दिस इज कॉल्ड रेडियल फोर्स ऑल्सो। तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रोटेट करेगा या रोटेट करने की कोशिश करेगा, विच इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट। तो बच्चों समझे यहां तक? टर्निंग इफेक्ट इट डिपेंड्स, कहां पे डिपेंड करेगा ये? चलो बच्चों पॉइंट्स बोलो, कहां पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्योंकि आप लाइट फोर्स लगाएंगे तो रोटेशन बहुत कम होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा, ये डिपेंड करता है जैसा कि हमने बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंटेड पॉइंट, सो दैट मीन्स ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा? एक तो ये आपका पॉइंट हो गया, ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड। दूसरा, इस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। दैट मीन्स आर जितना ज्यादा रहेगा आपको टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा मिलेगा, आर कम रहेगा सो टर्निंग इफेक्ट ऑल्सो विल रिड्यूस, या टर्निंग इफेक्ट आपको कम मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट, क्या लिख सकते हैं? वी कैन से दैट, बिल्कुल ध्यान से देते रहिए, सिर्फ 40-45 मिनट में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो अच्छा शानदार रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप सब सीख सकते हैं आराम से। सो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट, चलो हम आराम आराम से चलते हैं आपके साथ। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance, product of force and perpendicular distance from pointed point, it's called moment of force। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क, ये टॉर्क नाम आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सिंबल होता है टाउ है, आपके बुक में अभी नहीं है लेकिन आगे चल के इस टाउ के साथ बहुत डील करनी है आपको, इसलिए इसका नाम मोमेंट ऑफ फोर्स या जो टॉर्क है इसका सिंबल टाउ है, आप ध्यान में रखें, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। So we can conclude that what? We can conclude that turning effect of body is due to the moment of force। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। कौन सी लाइन है ये? मैं फिर से लिख देता हूं, बेहतर होगा, वो स्लाइड होके पीछे चला गया है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी is due to the moment of force or torque, moment of force or torque। So that means no force, no moment of force,
और नो टॉर्क दैट मीन्स नो टर्निंग इफेक्ट। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि एक बॉडी है, इस पे आपने ऐसा फोर्स लगा दिया है इस डायरेक्शन में। सो क्या होगा, ये पायोटेड पॉइंट O है, ये फोर्स इधर लग रहा है। सो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड perpendicular distance from pivoted point। आप ये दूसरा वाला फिगर भी आप देख सकते हैं क्योंकि आप पहले इसी से पढ़ रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर आपने ऐसा फोर्स लगा दिया F और ये डिस्टेंस R है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग R बोल सकते हैं या बुक्स में D भी बोला गया है इसे। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? F हो जाएगा इनटू जो डिस्टेंस है वो D हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर आप टाउ लिख रहे हैं, सो टाउ इज इक्वल टू बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस F इनटू D। तो आप ये नोट कर लेंगे, दिस इज द वे ऑफ मेजरमेंट। क्या होता है ये? दिस इज द वे ऑफ मेजरमेंट। एंड सिंपली now what you can do, let us find out the unit of moment of force। क्या लिखेंगे हम लोग? यूनिट ऑफ moment of force। unit of moment of force is what basically? So we can find it, unit of force multiplied by unit of distance। इजी है बहुत बच्चों। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग इसको न्यूटन बोलते हैं और न्यूटन इंटू मीटर होता है ये। सो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर। सो दिस इज बेसिकली द SI यूनिट, व्हाट? न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर इज व्हाट? It is the SI unit। And also you can find some other things like CGS unit is what? It's called dyne। कौन सी डाइन? रात वाली थोड़ी, 12 बजे वाली घूमने वाली। डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे हम लोग? डाइन इंटू सेंटीमीटर। सो व्हाट वी नो दैट 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये आप थोड़ा सा वैल्यू याद रखेंगे। एंड अगर हम लोग इसमें 10⁻² सेंटीमीटर में इसे चेंज करना है तो 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन आ जाएगा। व्हाट? डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है। और क्या जानते हैं हम लोग? 1 किलोग्राम जो फोर्स होता है हम लोग इसे कंसीडर करेंगे 9.8 न्यूटन मीटर। ठीक है। या 1 किलोग्राम वेट को हम लोग लिखते हैं 1 किलोग्राम फोर्स। तो ये पॉइंट भी हम लोग याद रखेंगे। और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर, ये भी याद रखेंगे बच्चों। तो ये कुछ कन्वर्जेंस वैल्यू इसलिए है ताकि हम लोग न्यूमेरिकल अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मूवमेंट समझ लिया कि क्या होता है। मूवमेंट का मतलब होता है सिंपल कि आप अगर पायोटेड पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस दूर से रेडियल डिस्टेंस r पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ऐसे 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 घूमेगा तो हम लोग उस इफेक्ट को टर्निंग इफेक्ट बोलेंगे और जो प्रोसेस चल रहा है ये हमारा हो जाता है मूवमेंट। तो हम लोग यहाँ तक समझ लिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग समझने वाले हैं
द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। क्या समझेंगे? चलो नोट करो अगला पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मूवमेंट तो आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो बहुत सिंपल मैं बताता हूँ। हमारी घड़ी कैसी होती है, ये लो अभी हम एक छोटी सी घड़ी बना देते हैं आपके लिए। तो इस घड़ी में यहाँ पे, ये जरा हटाओ इसको, हाँ तो हमने घड़ी आपके लिए बना दिया। ये घड़ी में यहाँ पे 12 बजते, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस पॉइंट पे 3, इस पॉइंट पे 4 बजते, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 बज गया और ये घड़ी का सेंटर पॉइंट हो जाता है। ठीक है, सो घड़ी ऐसी रहती है। अब मान लेते हैं कि उसमें ऐसे 10:10 हो रहा है, ज़्यादातर घड़ियों में यही मिलता है 10:10, तो कुछ चल रहा है सपोज। अब क्या होगा, क्लॉकवाइज अगर घड़ी तो ऐसे ही मूव करती है, तो द रोटेशन ऑफ क्लॉक इज बेसिकली, हम लोग इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बच्चों? ये बोलते हैं हम लोग इसे क्लॉकवाइज। और अगर कोई भी ऐसा मोशन है जो इस डायरेक्शन में है, मतलब ऐसे है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला कहलाता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। सो अब हम इसको मूवमेंट से कैसे रिलेट करेंगे? मूवमेंट के मोशन से। चलो हमने यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, हमने इस पे फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया तो ये पॉइंट ओ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस इस डायरेक्शन में जा रहा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वॉच। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, अब इसके साथ अगर हमारा जो दूसरा वाला है, ये वाला ले लेते हैं। अब इस पे अगर हमने इस पे ऐसा फोर्स लगा दिया तो ये इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या हो जाएगा ये? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप देख ही रहे होंगे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मींस इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। सिंपल सी बात है। आप मूवमेंट का देखेंगे, मूवमेंट क्लॉक के रिस्पेक्ट में चल रहा है टुवर्ड्स द मोशन ऑफ क्लॉक, और या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक चल रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो हम लोग सिंपल उसको बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इस पे चलेगा तो क्लॉकवाइज। अब इसमें एक नोटेशन आपको याद रखना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मैथमेटिक्स में जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलो इसके बाद बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स किसके हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स के। तो चलो करते हैं। लो हमने एक वो ले लिया। तो अगर हमने पहला एग्जाम्पल्स में हमने बोला कि चलो एक स्टीयरिंग व्हील बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील बनाना आप देख ही रहे होंगे कितना आसान है। तो हमने एक छोटा सा ये बनाया, यहाँ से एक इधर इधर इधर, तो ये हमारा एक स्टीयरिंग व्हील हो गया। तो अगर आपने इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ रखा है सपोज, और आप इसको राइट में मूव कर रहे हैं, इधर ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये जो मोशन इधर आया, पहली बात तो ये कौन सा मोशन है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज ए क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या होती है? अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है। ये यहाँ पे हमारा पायोटेड पॉइंट है, यही वाला, और पायोटेड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे देखेंगे आप तो फोर्स भी लग रहा है। इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। तो आर डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे ऐसा फोर्स लग रहा है, इधर इस डायरेक्शन पे ऐसा फोर्स लग रहा है। तो ये क्या कर रही है? हमारी व्हील रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है इन क्लॉकवाइज। ठीक है। अच्छा, अभी आप डोर ओपन और क्लोज करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ऐसा है हमारा डोर। यहाँ पे डोर लॉक है 2 जगहों पर, और डोर ऐसा बड़ा सा होता ही है। आप इसे ओपन क्लोज करते हैं, इसका हैंडल यहाँ कहीं लगा देते हैं हम लोग। तो हैंडल पे हमने फोर्स लगाया और इसको जब खोलते हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर गया, ऐसे मूव कर रहा है इस साइड। तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक रहेगा, या अगर ये ऐसे मूव कर रहा है
तो आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, ये मतलब पायोटेड है। ये दोनों पॉइंट क्या है, पायोटेड है हमारे दरवाजे के, पायोटेड है। अब जब हम यहाँ पे फोर्स लगा के खींचते हैं तो इसी पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये डिस्टेंस r ले लेते हैं जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो एक ये भी मोमेंट ऑफ फोर्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और दूसरा आप ये साइकिल होती है, आप देखते हैं, ये मान लेते हैं हमारे गियर्स, इसके ऊपर एक चेन लगी होती है बढ़िया। अब ये चेन जाके छोटे एक पिनियन पे लगी होती है, पीछे लगी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पैडल रहता है, तो इस पैडल पे जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स कैसा है, यहाँ से r डिस्टेंस पे लग रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये भी क्या क्रिएट करता है, मोमेंट क्रिएट करता है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स। सो ये कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे बॉटल खोलते होंगे, वहाँ भी मोमेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से चीज़ें जो है रोटेट करती हैं बिकॉज ऑफ मोमेंट ओनली। आप आसपास देखेंगे आपको बहुत सारे और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अच्छा है, दूसरी चीज़ जहाँ पर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में आप अपने डाउट लिख सकते हो, हम सब पढ़ेंगे और सबको रिप्लाई करेंगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा आपके डाउट्स का भी। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली कपल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कपल, COUPL। ये कपल है बच्चा। तो ये कपल गार्डन वाले नहीं है, ये बिल्कुल साइंस वाला कपल है, बहुत शानदार है, बहुत डेंजरस है, दोनों होता है। तो चलो इसे समझकर हम लोग शानदार बना देते हैं डेंजरस करने के बजाय। लेट अस अंडरस्टैंड। अच्छा, कपल के लिए हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देते हैं। जैसे क्या होता है कि वी नो व्हाट वी नो। क्या जानते हो आप लोग? अरे सर, जानने के लिए ही तो यहाँ आए। कोई बात नहीं बेटा, चलो मान लेते मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? दैट सिंगल फोर्स, क्या है, सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन ए पायोटेड बॉडी, on a pivoted body alone does not cause rotation। कह दो सर ये क्या बात बता रहे हैं आप, अब तक तो एक ही फोर्स लगाते थे रोटेशन हो जाता था। बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं। चलो अब हमने यहाँ पे एक क्या बना लेते हैं, पाना बना लेते हैं। पाना आप लोग जानते ही होंगे ना, ये जिससे हम लोग कुछ खोलते हैं, नट बोल्ट यार। तो ये बच्चों हमारा क्या है, पाना है। तो जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में तो इसका मोमेंट ऐसा रहता है, लेकिन ये वाला ऐसे, नट जो है ना, ये नट है, क्या है, नट। तो नट इस तरीके से मूव करता, भी हम समझते हैं। तो अगर अकेला फोर्स जो है रोटेशन नहीं करेगा तो क्या होता है। सो दूसरा क्या है, जो रोटेशन है हमारा, रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर ऑफ फोर्सेस। तो भैया रोटेशन जो है अभी समझ लो कि पेयर ऑफ फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है, अकेले अकेले कुछ नहीं होगा, अकेले जो है कुछ भी नहीं होगा, एक पेयर ऑफ फोर्स लगेगा ही लगेगा। देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप ढक्कन खोल रहे हैं भाई, ढक्कन है ना, एक बोतल की आप ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा बोतल है और ऐसे ऊपर इसके ऐसे ढक्कन लगा हुआ है। तो जब इस ढक्कन को हम लोग खोलते हैं ना, तो सपोज आपने कुछ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो ढक्कन, अब आप ध्यान देते होंगे बोतल को यहाँ से आप पकड़ के भी रखते हैं। तो जब वो पकड़ते हैं ना तो जाने अनजाने आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं। कहाँ पर? अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो आप दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। सो यही इसी जो है पेयर ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेयर ऑफ फोर्सेस की बात यही कर रहे हैं।
ठीक, कि एक फोर्स, वैसे ही जैसे आप ना इस पैने में इधर फोर्स लगाते हैं तो जो नट होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि सपोज व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स, सो रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड एट द पायोटेड पॉइंट। क्या करेगा, देखो यहाँ पे आप फोर्स लगाओ ना तो यहाँ पे एक रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलो हम इसको अगले पेज में देख लेते हैं क्या है ये भला। क्या होता है कि व्हेन, ध्यान से इसको देखना, नोट भी कर लेना, व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स लगाते हैं, फोर्स हमेशा एक्सटर्नल ही होता है सर, एक्सटर्नल फोर्स सो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ रिएक्शन, द फोर्स ऑफ रिएक्शन, द फोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। कहाँ प्रोड्यूस होगा, एट पायोटेड पॉइंट, एट अ पायोटेड पॉइंट। अभी देख लेंगे क्या होता है, विच इज इक्वल, क्या होता है, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, समझ सकते हैं हम लोग, विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन अलग होता है, डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। So this pair of force is called, this pair of force is called, अभी हम वैसे भी समझेंगे, चिंता मत करो, कपल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल, जो पेयर ऑफ फोर्स होता है। तो वी कैन कंक्लूड दैट, कैसे कंक्लूड करेंगे, चलो समझते हैं, थोड़ा कलर बदल दें। क्या लिखेंगे, टू इक्वल, कैसे फोर्स होते हैं, टू इक्वल, एंड अपोजिट, कैसे होंगे, अपोजिट, और क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे, पैरेलल फोर्सेस, विच इज नॉट एक्टिंग, not acting along the same line। भाई सेम लाइन कैसे होगा, अगर एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो तो दूसरा इधर लगेगा, तो एक अप साइड जा रहा है, दूसरा डाउन साइड जा रहा है, तो सेम लाइन तो है ही नहीं। नॉट एक्टिंग along सेम लाइन, along सेम लाइन प्रोड्यूसेस कपल। भाई यही कपल जनरेट करता है। आप इधर फोर्स लगाएंगे, ये इधर मूव करेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने पॉजिटिव पॉइंट ले लिया, ये देखो हमने ले लिया। अब आप अगर इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाओगे, यहाँ से आपने फोर्स लगा दिया ऊपर, तो यहाँ से क्या करेगा, डाउन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटेड है इस जगह पे, आप इधर से ऊपर करोगे, इधर से डाउन जाएगा। तो देखो फोर्स तो पैरेलल है बट अपोजिट इन नेचर है। देखो ये क्या है, फोर्स पैरेलल है, फोर्स क्या है, पैरेलल है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो इसलिए हम इसे क्या, अब रिएक्शन है बिल्कुल, आपने एक्शन यहाँ पे लगाया और रिएक्शन यहाँ पे हुआ। फिर से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि आपने ये क्या था, एक पॉइंटेड पॉइंट था, आपने एक्शन यहाँ पे लगाया, रिएक्शन यहाँ पर हुआ। देखो फोर्स क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है एंड अपोजिट है। फोर्स पैरेलल है और अपोजिट है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज कॉल्ड कपल, दिस इज कॉल्ड सिंपल कपल। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
अब कपल के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे डोर को ओपन कर लो, नट बोल्ट ओपन करो, देखो यहाँ पे एक ऐसा नट था, नट था क्या है मान लेते हैं। अब आपने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएंगे, नट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब आपको डोर खोलना है तो डोर के केस में भी ऐसे होता है, स्टीयरिंग व्हील के केस में भी ऐसे ही होता है। समझ गए? चलो यहाँ तक समझ गए तो अब हम चलते हैं आगे। आपका जो डाउट है छोटे छोटे उसको कैलकुलेशन से समाप्त कर देंगे। क्या है डाउट या क्या हो सकता है? अगला टॉपिक हमारा वो है मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं हम लोग इसे, मोमेंट ऑफ कपल। सो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? चलो अब इसको थ्योरी तो बहुत कर ली, चलो अब एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। हमने एक लाइन ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसको हमने यहाँ पे कर दिया पायोटेट इस पॉइंट पर। ये पॉइंट हमने मान लिया ये O है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये B पॉइंट है, इस पर हमने फोर्स F लगा दिया, और ये A पॉइंट ले लेते हैं और इस पर भी फोर्स हमने F लगा दिया, लग गया। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है टोटल वो D ले लेते हैं, और छोटा सा काम हमें करना है कि इनके बीच का डिस्टेंस R1 ले लेते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम R2 ले लेते हैं। देखो ये तो अब कॉमन सेंस है, कौन सा कि R1 प्लस R2 जो होगा वो इक्वल टू D होगा कि नहीं? कह दो सर इतना कौन नहीं जानता। हाँ, तो क्या होता है देखो, अब हमने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगा दिया A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो ए बी है ना, ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं कपल आर्म। क्या बोलेंगे? कपल आर्म। ये जो डी है ना इसी को हम लोग कपल आर्म बोलेंगे, तो ध्यान रहेगा। तो एक ए बी क्या है, एक बार है जो ओ पॉइंट पे पायोटेड है, और ए एंड बी के बीच का ये जो बार का लेंथ है वो पूरा कितना है, डी है। हमने दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी है ना। तो अब क्या होगा, दीज टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। भाई ये इधर लेके जा रहा है, ये इधर लेके जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये टर्निंग इफेक्ट। कैसे प्रोड्यूस करेंगे जरा देखो भाई, ये ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ये नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा, तो टर्निंग इफेक्ट ही तो प्रोड्यूस हो रहा है। बिल्कुल बार, और देखो बार का जो डायरेक्शन है ये कौन सा क्लॉक, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। दैट मीन्स जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं, मूवमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? चलो मूवमेंट निकाल लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स F एट ए। क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए? कैसे निकाल लेंगे? एट ए पॉइंट पर। भाई ए पे मोमेंट यहां से निकालना है, डिस्टेंस कितना है, फोर्स कितना लग रहा है F, और डिस्टेंस कितना है देखो बच्चा R1 है, हमने ले लिया सिंपल। अब दूसरा लिख देते हैं, क्या दूसरा है? मोमेंट ऑफ फोर्स एट F एट B पे देख लेते हैं। अब B पे क्या होगा जरा देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं क्या होगा। फोर्स तो F ही है, डिस्टेंस R2 है, लो दोनों जगह पे तो हमने मोमेंट निकाल लिया। अब आप क्या कर सकते हैं, हमने आप निकाल सकते हैं टोटल मोमेंट। क्या निकाल सकते हैं? लिख दो टोटल मोमेंट, टोटल मोमेंट ऑफ कपल। तो टोटल मोमेंट के केस में भाई दोनों को जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो F इंटू R1 प्लस F इंटू R2। अब इन दोनों में देखो भाई F कॉमन है, कह दो सर इतना तो हम लोग सब जानते हैं। क्या और कॉमन? R1 प्लस R2 हम लोग पहले से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, F इंटू डी हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ कपल जो है क्या है, मोमेंट ऑफ कपल जो है वो F इंटू डी है, जो कि क्या होता है आपको पहले से पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई, हमने लिखेंगे फोर्स इनटू ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इसके बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो
तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत आसान है। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा होगा, और अगर जो समझ में नहीं आ रहा है आपके, वो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। क्या है वो? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज है, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। देखो, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पे कब होगी? व्हेन। इक्विलिब्रियम पे कब होगी? व्हेन। पहला क्या? या पेन ज्यादा मोटी चल रही है, इसको थोड़ा पतला बना देते हैं क्या? पहला क्या है? द रिजल्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब भाई, अगर वो स्टेट अपना चेंज नहीं कर रही है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, ठीक है। अभी हम लोग उसको समझेंगे क्या होता है। तो यार अभी ये लिखेंगे पहला पॉइंट, द रिजल्टेंट। क्या लिखेंगे? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। क्या होना चाहिए? सभी फोर्स जो लग रहे हैं उस पर, उसका रिजल्टेंट तो एक तो जीरो होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि बॉडी विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर मोशन में है तो एक समान वेलोसिटी से मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम में होने की? जो उसका अलजेब्रिक सम होगा ना, क्या होगा? अलजेब्रिक सम। हम तो पढ़ने से पढ़ते आ रहे हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स। क्या होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस। क्या होगा? ऑल फोर्सेस अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इज जीरो। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट इज जीरो, ठीक है। अब देखो, ये जो इक्विलिब्रियम है ना, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? देखो भाई, पहले तो हमने मान लेते हैं, पहला तो स्टैटिक है। क्या है? स्टैटिक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरा जो है वो है डायनामिक। क्या है? डायनामिक। अच्छा, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपके बुक के हिसाब से है। सेलिना की जो बुक है उस बुक के हिसाब से एक एक टॉपिक आप मिला सकते हो। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। और हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं उसके आंसर्स आपको मिलेंगे, और कुछ एग्जांपल्स भी आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे इसमें करने के लिए, ठीक है। सो ये दूसरा क्या है? वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो अब समझते हैं क्या होता है। देखो, स्टैटिक का केस तो बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल आसान है। कैसा है? जैसे मान लेते हैं यहाँ टेबल पे हमने कुछ रख दिया है, कुछ क्या मान लेते हैं, किताब 2 3 4 रख दी है, या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लेफ्ट में लगा देते हैं, दूसरा राइट में लगा देते हैं। ध्यान से समझ लो, हम इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, इसलिए आप अगर नोट करना है तो सुन के नोट कर सकते हो। हमने इस पे क्या किया? ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लेफ्ट में लगा दिया, दूसरा सेम फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में हमने एक दूसरा फोर्स लगा दिया। अब आप बताओ, आपका एक हाथ कोई दूसरा आदमी खींच रहा है, मान लेते हैं 100 न्यूटन की फोर्स से, दूसरा आदमी भी आपका दूसरा हाथ दूसरे डायरेक्शन में खोल रहा है 100 न्यूटन की फोर्स में। आप स्टेबल तब तक रहोगे जब तक आपके हाथ उखड़ नहीं जाते हैं। तो सिंपल सा है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का केस थोड़ा सा डायनामिक है। इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी हमारी, मान लेते हैं, अगर बॉडी है ना, रिमेन सेम स्टेट, क्या कहती है? चलो बदल देते हैं, रिमेन्स सेम स्टेट, स्टेट ऑफ मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस, ठीक है, मेनी फोर्सेस। तो हम उसको, अगर डायनेमिक में है, अगर वो मूव कर रही है, पहले से ही क्या है, मोशन में है, और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसके बाद भी वो मोशन में है, तो हम लोग उसको बोलेंगे वो डायनेमिक उसमें है।
अब चलो समझ लेते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। अब हम इसका एक दो एग्जाम्पल आपको अच्छा बता देते हैं। मान लेते हैं कि एक रेन ड्रॉप है। क्या है? रेन ड्रॉप है, तेजी से v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है भाई, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे हैं? अब इसके ऊपर ये ड्रॉप है, ये क्या है? ये ड्रॉप है। अब इसके ऊपर ना एक तो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उस पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है। इसके ऊपर कौन सा? आप अभी नहीं जानते हो तो आगे जानोगे। एक विस्कस फोर्स है, मतलब जो गैसेस हैं उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। और इसके ऊपर बियोंसी फोर्स, एक बियॉन्ड फोर्स लग रहा है ना, बियोंसी लग रही है इसके ऊपर। तो गैसेस हो गया और बियोंसी फोर्स। बियोंसी क्या होता है? जो इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। इन दोनों फोर्सेस को या इन फोर्सेस को काउंटर करके ये ड्रॉप एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या होता है? ड्रॉप क्या है इसका? इसका जो वेलोसिटी है ना ग्राउंड तक कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती, मान लो बहुत स्लो हो जाती, आराम आराम से गिर रही है स्लो मोशन में, तब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अपना खो देती, नहीं रह जाती उसमें। अब दूसरा केस है, मान लेते हैं हमारे पास एक एरोप्लेन है। मान लेते हैं, अब मानना ही पड़ेगा, अभी है कहाँ अपने पास, ठीक है। ड्राइंग देख के हंसना नहीं, ऐसे जल्दी से। अब इससे अच्छा और क्या बना सकते हैं यार तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हमारा एक प्लेन है, चलो इसका पायलट मैं तुम लोगों को बना देता हूँ। तो इस प्लेन में क्या है, ये सपोज एक h हाइट पे उड़ रहा है। किस कौन से हाइट पे? h हाइट पे। यहाँ पे ग्राउंड है, h हाइट पे उड़ रहा है। अब इसके उड़ने के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। कौन कौन सी? उड़ने के लिए तो इस पर एक लिफ्ट फोर्स लगता है, ठीक है। देखो ये पढ़ने के लिए अभी आप छोटे हो थोड़ा, लेकिन आप इतना समझो कि लिफ्ट फोर्स जो इस प्लेन को ऊपर लेके जा रहा है, इसके वेट को कैरी करता है। लिफ्ट फोर्स किसको कैरी कर रहा है? इसके वेट को, प्लेन के वेट को। अगर ये लिफ्ट फोर्स कम होगा तो प्लेन अपने हाइट चेंज कर देगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और अगर ये लिफ्ट फोर्स बढ़ जाएगा तो ये प्लेन इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। तो इसका जब जब प्लेन एक हॉरिजॉन्टल हाइट पे, h हाइट पे रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लिफ्ट फोर्स है, मतलब लिफ्ट हो जो है वो वेट के इक्वल आ रहा है। किसके? ये लिफ्ट फोर्स है, मतलब जो L है, L इज इक्वल टू W है इस केस। तो ये भी क्या है? एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब ये 1000 की स्पीड से चल रही है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस स्पीड में अगर ये अपनी क्या है, हाइट ना तो गेन कर रही ना लूज कर रही, इसका मतलब क्या है, लिफ्ट जो है वो वेट के इक्वल चल रहा है। सो लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट है। इस केस में क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे कि हमारी प्लेन जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है बच्चों, अब हमें उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे यहाँ तक। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मैं ऐसे कर देते हैं। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद सेक्शन ए पॉइंट का अब आपका एक लास्ट बचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। कौन सा कंसेप्ट है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये है बच्चा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। चलो अब इसको समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आखिर क्या भला है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस, हाँ कह दो सर, आप लिख दो, बहुत लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या कहता है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, क्या कहता है? द सम ऑफ all forces, the sum of all forces acting on a body, भाई बॉडी पे ही लगेगा, acting on a body, the sum of all forces acting on a body about the axis of rotation। क्या है? about the axis of rotation। अभी जो करते आ रहे हैं ना उसी को अभी प्रिंसिपल है, about the axis of rotation। अभी तो हम यही करते हुए आ रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, क्या बोलेंगे इसको? इज जीरो, ठीक है। तो बॉडी क्या होगी? द बॉडी विल बी इन, द बॉडी इन इक्विलिब्रियम में होगी। किस में होगी? इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो अब इसको सरल कैसे किया जा सकता है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट। कह दो सर एक्सपेरिमेंट हमें बहुत पसंद है। वो अलग की बात है, 2 सालों से लैब में नहीं गए हम, नहीं तो अब तक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर बन गए होते। कोई बात नहीं बेटा, इस साल कर लेना। देखो ये आ गया। यहाँ पे अब हमने क्या किया है, एक हमने ये रूलर लगा दिया, स्केल आप जिसको बोलते हैं। देखो भाई अगर अच्छी ना बने तो बुरा मत मानना, काम चला लेना यार, अपने बच्चे हो तुम लोग, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे है कि नहीं। अब इसको हमने मान लिया कि ये लेंथ L1 है और यहाँ पे एक लेंथ हमने L2 मान लेते हैं, ठीक है। और यहीं पर एक वेट लगा देते हैं, एक वेट यहाँ पे लगा देते हैं और एक वेट यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब ये मान लेते हैं वेट हमारा W1 है और ये वेट हमारा मान लेते हैं W2 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ये ज़्यादा होता है तो ऐसा मूवमेंट होगा और ये ज़्यादा होता है तो ये ऐसा मूवमेंट होगा। कहते तो सर ये तो हम जानते ही हैं। बेटा धीरे धीरे सब स्मार्ट बन जाओगे, हमें पता है। तो चलो बच्चों क्या होता है, अब यहाँ से देखो, अभी तक हमें क्या जानते, देखो इधर फोर्स लग रहा है, वेट की वजह से इधर क्या लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो लेंथ कितना है, डिस्टेंस L है, फोर्स कितना है W1। तो हम लिख देंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, देखो ये क्लॉकवाइज है, ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर, क्या लिख देंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट एट ऑफ वेट, इसको समझिएगा, वेट W अबाउट O, ठीक है। क्या होगा, हमने लिख देंगे W1 इंटू L1, भाई वही है फोर्स इंटू डिस्टेंस। और दूसरा जब हम यहाँ पे लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, चलो लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, निकाल लेंगे W वाला, क्या लिखेंगे W2 इंटू L2। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब हॉरिजेंटल रहे। अब आप एक केस और मैं बता देता हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये समझेंगे, इक्विलिब्रियम का मतलब आप ये समझेंगे कि ये हॉरिजेंटल है। कैसा है, हॉरिजेंटल लिखा हुआ है दैट मीन्स इक्विलिब्रियम में है, या इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है तब भी आप समझिए इक्विलिब्रियम में, या अगर लिखा हुआ है बैलेंस्ड तब भी आप समझिएगा कि इक्विलिब्रियम में है। 3 केसेस एग्जाम में पूछते हैं, मतलब तीनों में से कोई भी एक नाम यहाँ पे लिख देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी क्या है बेटा कि इधर जितना मूवमेंट लग रहा है और इधर जितना मूवमेंट लग रहा है, अगर हम उन दोनों बराबर कर देते हैं तो क्या होगा इक्विलिब्रियम के हिसाब से कि W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2। क्या तो सर ये तो बहुत ही आसान था, बस बेटा ये याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या याद रखना है, WN1 इज इक्वल टू W2 L2। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट अराउंड दिस साइड, देखो ऐसे कर लो, इस साइड का मूवमेंट इक्वल टू इस साइड का मूवमेंट। इस साइड का मूवमेंट क्या था WN L1, इस साइड का मूवमेंट क्या था W2 L2, दोनों बराबर हो जाएगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये हॉरिजेंटल हो सकती है, बैलेंस भी है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपका सेक्शन ए जो है अभी पूरा हो गया है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप हमारे साथ कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर ही लें आज, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आगे आपको बहुत हेल्प करते हैं। फिजिक्स जो है न्यूमेरिकल से भरा पड़ा हुआ है। तो चलो हम क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया करेंगे जो मुझे याद है, और आपके लिए न्यूमेरिकल्स कर देते हैं ताकि आप किसी से बिल्कुल कमजोर ना रहें फिजिक्स में। न्यूमेरिकल्स तो पहला हम लोग ले लेते हैं। देखो पहले के लिए मैं ना बहुत सिंपल सा क्या करने जा रहा हूँ, एक फिगर बना देता हूँ जो कि आप जिससे बहुत परिचित हैं। और यहाँ पे हमने एक फोर्स लगा दिया है, कितने न्यूटन का फोर्स है, हमने फोर्स F दे दिया है कि
कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस डिस्टेंस को हमने मान लेते हैं 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.2 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये यहाँ पे पायोटेड है, क्या है पायोटेड है। पूछा है फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या पूछा है फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चा मोमेंट ऑफ फोर्स आपको निकालना है, तो सर हम तो अभी मास्टर हो गए हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है 1.2 मीटर, तो कह दो सर ये तो बहुत आसान था 12 न्यूटन मीटर आ गया फोर्स। ठीक है, अब इसी में ना एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है, वो क्या कहेगा कि इफ, चलो इसी को आंसर को एक क्वेश्चन बना देते हैं, इफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज 12 न्यूटन, क्या दिया है 12 न्यूटन, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो जाता है, अब दूसरा बना रहे हैं कि जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार आईसीएससी में, कि इफ मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू 12 न्यूटन मीटर, कितना है मोमेंट ऑफ फोर्स 12 न्यूटन मीटर है, और जो फोर्स है इसके बाद फोर्स कितना है मान लेते हैं 10 न्यूटन है, तो पूछता है फाइंड आउट द डिस्टेंस, क्या पूछेगा डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे पूछेगा फाइंड, अब मान लो ये नहीं दिया है अभी, ठीक है ये वाला फोर्स मान लो डिस्टेंस अभी नहीं दिया है, तो क्या पूछेगा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पायोटेड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन किसमें पायोटेड पॉइंट एंड एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसा ये मतलब डी पूछा है आपसे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स MOF इज इक्वल टू व्हाट, MOF फोर्स इनटू डी, तो फोर्स हमें मोमेंट ऑफ फोर्स भी दिया है 12 न्यूटन मीटर, फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन इज इक्वल टू डी कर देंगे, यहाँ से बच्चों डी निकल जाएगा हमारा, सो डी इज इक्वल टू क्या करेंगे 12 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन, तो क्या आ जाएगा डी इज इक्वल टू 1.2 मीटर, देखो एक जगह दिया था अभी हमने फाइंड आउट, तो इस पे इस सिंपल टाइप के क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब चलो एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं जो आपकी किताब से ही है, हमने एग्जांपल से एक एग्जांपल ले रखा है, एक डोर वाला, अगर आप लोगों ने किया हो तो ध्यान होगा, नहीं किया होगा तो हमारे साथ अभी कर लो बच्चों, ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। तो हमने क्या लिया एक डोर ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एक ऐसे डोर बना लिया है, ठीक है, जो कि किताब में दिया हुआ है कि जो डोर पे ना हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो सेंटर में लगा रहे हैं डोर। देखो डोर के हैंडल तो यहाँ लगा होता है ना, हम कहते सर हम लोग जानते हैं यहाँ से खींचते हैं, लेकिन अभी भाई फिजिक्स है न्यूमेरिकल है कुछ भी बना देते हैं, तो जो फोर्स है ना यहाँ पे वो लग रहा है 100 न्यूटन का, कितने का 100 न्यूटन का फोर्स सेंटर पे लग रहा है। अब ये कह रहे हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, कितना 3 मीटर है, मतलब डोर की लेंथ, फोर्स सेंटर में लग रहा है, तो डी क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो हमने d यहाँ पे निकाला, क्योंकि जहाँ पे फोर्स लगेगा डिस्टेंस वही ले आ जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 1.5 मीटर है। ठीक है, तो ये लिखा गया। तो पूछा है मिनिमम टॉर्क टू ओपन द डोर, ठीक है, सो मिनिमम टॉर्क पूछा है पहले, क्या मिनिमम टॉर्क, तो कैसे निकालेंगे बच्चों मिनिमम टॉर्क, तो चलो निकाल देते हैं, है ना। हमारे पास F दिया है, F क्या है, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और क्या दिया है R इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 100 इंटू डिस्टेंस कितना 1.5 इज इक्वल टू 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये कह रहा है एक दूसरा क्वेश्चन है, इसी का पार्ट बी है, ये कह रहा है कि लीस्ट फोर्स विच रिक्वायर्ड अप्लाई फोर्स एट द एंड, कि कितना मिनिमम फोर्स लगेगा जब हम इसको अब शिफ्ट कर देते हैं, मान लेते हैं अब इसी फोर्स को हमने शिफ्ट करके एंड में लगा देते, यहाँ पे लगा देंगे, मान लेते हैं एफ डैश है, ठीक है, तो ये एफ डैश पूछा है कि कितना होगा जब हम वहां पे लगाएंगे। तो ठीक है, देखो पहले से ही तो हमने मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमें पता ही है उसका कितना है,
तो अब हम क्या लगा देंगे कि मोमेंट ऑफ फोर्स MOF इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये फोर्स मान लेते हैं F डैश है, F डैश इंटू 3 कर देंगे। अभी 3 पूरे 3 मीटर पे लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो हम लोग ये पूरा डिस्टेंस लेंगे। तो ये हमें पहले से पता है 150 इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे F डैश हमारा आराम से निकलेगा, है ना, 3 × 5 = 15, F डैश इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ गया। तो बच्चों एक ये ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप अभी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और है क्वेश्चन, ले लेते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दें बच्चों या दूसरा पेज ले लें, जैसा बोलो। चलो दूसरा पेज ही ले लेते, जब हमारे पास ऑप्शन है तो दूसरा पेज ले लेते हैं। तो दूसरा पेज कौन सा है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक, अगर आपको ध्यान हो, अगर आप लोग जानते हैं तो आपके बुक में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। तो चलो पहले एक हम क्वेश्चन यहाँ पे बना देते हैं, न्यूमेरिकल नेक्स्ट है। ये क्या कहता है कि यहाँ से हमारे पास एक ऐसा मान लेते हैं मीटर स्केल है, मीटर वो 1 मीटर का होगा तो यहाँ पे 0 होगा। अब देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर जो मीटर स्केल होगा ना, मीटर स्केल मतलब 1 मीटर, 1 मीटर मतलब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना, 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो खुद का वेट होगा ना वो हमेशा 50 पे लगेगा। कहाँ लगेगा, हमेशा 50 पे लगेगा, वो ध्यान रखना है आपको। तो मान लेते हैं इसका वेट 50 पे mg लग रहा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये बैलेंस्ड है 60 पर, कहाँ पे, 60 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस है, फलक्रम लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, एक फोर्स यहाँ पे हमने 10 ग्राम का एक और वेट हमने लगा दिया है। देखो वो इधर इसलिए लगाया क्योंकि अगर आप इधर लगा देंगे तो ये ऐसे गिर जाएगा, है ना। पूछा है कि किस एंड पर विथ 10 ग्राम का मास कहाँ प्लेस किया जाए। तो सबसे बड़ी जरूरी बात भाई, ये ए पॉइंट पे तो हम प्लेस नहीं करेंगे, ये करेंगे तो सारा मूवमेंट इधर हो जाएगा। तो इसको बैलेंस रखने के लिए उसे हमें इस साइड प्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ रूल, अब इसमें हमें पूछा है इस mg को पता लगाना है, मास ऑफ रूल। चलो देख लेते हैं। तो बस हमें पहले से ही पता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या करना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे mg हमने ले लेते हैं इनटू, देखो फोर्स हो गया, अब डिस्टेंस लेना, डिस्टेंस कितना लेना, देखो भाई ये यहाँ से यहीं तक आ रहा है 50 10, कितना डिस्टेंस है 60 माइनस 50 कर लेंगे या सीधा 10 भी लगा सकते हैं। और इधर देखो भाई कितना वेट लग रहा है, 10 लग रहा है, 10 ग्राम का। और डिस्टेंस कितना लग रहा है, देखो 60 से यहाँ तक 100 तक कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई वैसे नहीं आ रहा है, 100 माइनस क्या लिख दो, 60 लिख दो एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 mg इज इक्वल टू 400, है ना। तो वेट कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। कितना आ जाएगा भाई, इसका जो वो है वो कितना है, 40 ग्राम का। तो ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अब चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करा देते हैं आपको, है ना। सीसॉ जानते ही होंगे आप लोग, भाई कह दो सर खेल के बड़े हुए हैं, आप भी क्या बात कर रहे हैं कि हम नहीं जानते। देखो यहाँ से हमने इस पर लगा दिया, ठीक है। तो एक ये झूला होता है, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, एक बच्चा इधर बैठ जाएगा, पहले ये नीचे जाएगा फिर वो ऊपर जाएगा, ऐसे चलता रहता है। सीसॉ है, तो कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो सेंटर से, ये मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, सेंटर से 2 मीटर की दूरी पे बैठा है, कितना, 2 मीटर की दूरी पर,
और उसका वेट इन्होंने दे दिया है वो है 30 किलोग्राम का। कितना? 30 किलोग्राम का। और एक जो है वो 3 मीटर की दूरी पे बैठा है, 2.5 मीटर की दूरी पे बैठा है यहाँ पे। उसका वेट कितना है? उसका वेट इन्होंने 50 किलोग्राम दे दिया है। ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि एक 74 किलोग्राम का आदमी कहाँ बैठा दूं? यहाँ पे हमने मान लेते बैठा दें कि ये दोनों को बैलेंस कर दें। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, और ये मान लेते हैं x मीटर है। क्या है? x मीटर है। तो वही फोर्स लगा देंगे, हम पता कर लेंगे। सॉल्यूशन में क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हम लोग लिख देंगे। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख देंगे? देखो क्लॉकवाइज में कितने आएगा? पहले हम लिखेंगे फोर्स कितना है? 30 किलोग्राम का, किलोग्राम उतना न्यूटन में जाएगा, इनटू डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, प्लस 50 इंटू डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर। ये तो एक साइड आ गया जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे। क्लॉकवाइज कितना जाएगा? 74 इंटू जो है x मीटर कर देंगे भाई। हमने कहा कि उधर जो नहीं पता है वो x मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम फोर्स हो गया ये, और ये प्लस 125 किलोग्राम फोर्स हो गया। फोर्स इंटू मीटर है, ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर में हो जाएगा, इज इक्वल टू 74 इंटू एक्स मीटर आ गया। ठीक है। अब जो हम x निकालेंगे वो क्या आ जाएगा? इन दोनों को तो ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, 185 आ जाएगा। तो लिख देंगे 185 डिवाइडेड बाई 74। ठीक है। तो जैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे कितने टाइम्स आ जाएगा? एक बार 2 टाइम्स आ गया, फिर पॉइंट बढ़ा लिए, फिर ऐसे करोगे ये लगभग 5 टाइम्स आ रहा है। कितना आ जाएगा? 2.x=2.5 मीटर। तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो 2.5 मीटर यहाँ से यहाँ बैठाना, इधर नहीं बैठाना भाई। एक पे बैठा दो तो गिर जाएगा, ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के दो इधर ऑलरेडी हैं 80 किलोग्राम के, तो 75 किलोग्राम वाले 74 किलोग्राम वाले को हम कहाँ पे बैठाएंगे? 2.5 मीटर पे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 17 ए का, एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 17 है न्यूमेरिकल। ठीक है। तो न्यूमेरिकल का पहले मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ। इन्होंने ये कहा कि भाई ये 100 मीटर की क्या है? स्केल है। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा इसका मतलब। अच्छा, दूसरा चीज क्या होगा? इसका जो वेट होगा ना, उन्होंने दिया इसका वेट 100 ग्राम है। कितना? 100 ग्राम है। तो सेंटर पे लगेगा 50 पे। कहाँ? 50 पे 100 ग्राम लगेगा। अब उन्होंने कहा 40 पर एक मास फलक्रम लगा दिया। उन्होंने क्या लगा दिया? 40 पर फलक्रम लगा दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो भी है। ठीक है। 40 पर उन्होंने क्या लगा दिया? फलक्रम लगा दिया। अब 20 पर उन्होंने एक मास और लटका दिया है, उसका अभी पता नहीं बताया कितना है। कितने पे? 20 पर। ठीक है। अब देखो ये 20 है, 40 है, 50 है, 100 है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मास ही अननोन है, मास निकाल लेते हैं। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट हम क्या लिखेंगे? 100 इंटू 10 कर देंगे इज इक्वल टू 20 इंटू मीटर। भाई जो मास निकालना है, देखो 100 इंटू 10, यहाँ से यहाँ तक कितना है? फलक्रम से दूरी सिर्फ 10 है। 100 इंटू 10 हो गया, किधर जाएगा ये? एंड। और ये दूसरा वाला कौन सा है? 20 इंटू मीटर। देखो फलक्रम से कितनी डिस्टेंस पे है? 20 पे, तो 20 इंटू एम कर दिया। ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 ग्राम आ गया भाई।
तो ये m की वैल्यू अब आ गई 50 ग्राम, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ए का सोल्यूशन तो आपका हो गया। बी वाला देख लेते हैं। लिखा हुआ है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब भाई ये एक दूसरा भी बना देते हैं। यहीं पर एक छोटा सा ये मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर का है, ये 50 पे 100 ग्राम लगा ही है, और यहाँ पे फलक्रम लगा हुआ है कितने पे 40 पे। अब इसको हम यहाँ पे 10 पे लगा देते हैं। कहाँ पे 10 पे लगा देते हैं। कितना है ये 10 पे जो है वो 50 ग्राम लगा देते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किस साइड मूव करेगा, तो एंटी क्लॉक, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, देखो भाई पहले तो 50 लगाएंगे, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 40 माइनस 10 कर देंगे, सिंपल। तो 50 इंटू 30 कर देंगे, कितना आ गया 1500 ग्राम सेंटीमीटर आ गया, है ना। ठीक है, अब इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट भी निकाल लेंगे। कितना, क्लॉकवाइज भी निकाल लेंगे। क्लॉकवाइज क्या आएगा, क्लॉकवाइज में देखो ये 100 वाला जो इधर लगा ये क्लॉकवाइज करेगा। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये करेगा। इसमें क्या करेंगे 100 ग्राम कर दिया इंटू 10 कर दिया बच्चों, है ना। 10 कैसे होगा, 50 माइनस 40, ये 10 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना आ गया 1000 किलोग्राम, कितना आ गया 1000 ग्राम सेंटीमीटर अगेन। तो एक 1500 एक 1000, तो नेट मूवमेंट क्या आ जाएगा, क्या होगा, रिजल्टेंट मूवमेंट अगर हम निकाल लें कि यहाँ पे, तो नेट मूवमेंट, सो नेट मूवमेंट इज इक्वल टू, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका। सो नेट मूवमेंट कितना होगा 1500 माइनस 1000 कितना हो जाएगा 500 ग्राम सेंटीमीटर। किस साइड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये नहीं। अब तीसरा है कि हाउ इट कैन बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 किलोग्राम, ये 4th नंबर है। सो हाउ इट कैन बी बैलेंस्ड बाय ए मास ऑफ 50 ग्राम। तो अब एक 50 ग्राम का मास हम चलो इधर ऐड कर देते हैं, अभी हमें पता नहीं है, इधर एक 50 ग्राम का मास हम इधर ऐड कर देते हैं। अब एक और मोमेंट निकाल लेते हैं। सेम फॉर्मूला हमें पता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, कर लेते हैं। तो पहले 100 के लिए 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10 डिस्टेंस प्लस 50 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई, अब ये इसको यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये डी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डी है। 50 इंटू डी कर लेते हैं, इज इक्वल टू, और क्या है भाई 50 है, 50 ग्राम लग रहा है कितने पे, मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 10 पे, मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 10 कर दो या सीधा 30 लिख दो। तो 100 गामा ये 1000 हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1000 आ गया, ये 50 डी आ रहा है इज इक्वल टू, ये आ रहा है 1500 लिख देते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से 50 डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1500 माइनस 1000 आ रहा है, कर देते हैं। सो डी इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे, और ये आ गया डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो कहने का मतलब है इसी पे इसको भी लटका देंगे, है ना। डी 10 है ना, तो यहीं से 10 लगा देंगे, 10 सेंटीमीटर पे ही वो भी आएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए हमने सोचा था कि वीडियो सेशन थोड़ा छोटा होगा, लेकिन काफ़ी लंबा हो गया है। अभी हमारा सेक्शन बी और सी बचा हुआ है, तो अगर हम हाफ एन आवर आप और दे देंगे तो हम ये पूरा कर लेंगे। लेकिन ये सेक्शन हम लोग करेंगे अब बाद में, क्योंकि मैं ये रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी ज़्यादा बच्चों। तो हम लोग मिलेंगे फिर एक नए सेशन में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।